I really want to thank the management of ASMA Jahangir Conference and the organizers. And it's a great pleasure and honor for me as a journalist to moderate this most important issue of the day, that is silencing the media. And the theme for this session is politics of persecution. Since in the previous session, we have heard many speakers, politicians, and in this session you are going to hear journalists. And with the consent of the honorable speakers and journalists, I am dedicating this session to the audience, and I will give more time to the audience for questions and answers, because while we talk about silencing the media, and media is voice of the people, so why not give voice to the people and we reduce our time of discussion from the panelists. I hope everybody agrees. Let me introduce you the honorable speakers today, senior journalists and media persons, the award-winning journalist and columnist Hamid Mir, who needs no introduction. He continues to face a lot of problems and difficulties because of his professional work. And with him is Owen Bennett-Jones, who is journalist and former host of the BBC's NewsHour UK. And next to him is Arifa Noor, who is a journalist, works for Dawn News. And our special guest today from India, Siddharth Varadarajan, founding editor of The Wire India. And he will be able to share some of the experiences from India as well, because I think we both are these days sailing in the same boat because of peculiar political situations. And last but not the least, our heroes of the past and the biggest struggler for democracy, Mr. Nasser Zaidi. We have the honor to have you here on this panel today. Nasser Zaidi is the former Secretary General of Pakistan Federal Union of Journalists, and he was part of the struggle for restoration of democracy and against the dictatorship of General Zia back in the 70s. I will open up the discussion with a brief outline of today's topic. Pakistan today is facing big challenges, not because the democracy is under threat. This is not the only reason, but also because the voices of the people are being suppressed. And when we talk about silencing the media, it is basically not just the media, it is voice of the people and voice of the voiceless that is being suppressed by the current regime also and by the previous regimes as well. Today, the bigger challenges are, as one of the popular lawyer and columnist and analyst has put it, it is not rule of the law, but rule by the law. I am referring to the latest analysis by Advocate Rima Umar. And I think that perfectly explains how the current regime and even previous regimes were moving forward. And this morning we heard the law minister, Mr. Azam Tarid, who was also hinting at bringing in some new regulations about for controlling not just the media, but also social media. So I think these are the things we should be focusing on in our today's discussion. I will now open up the debate and request each of the panelists, including Mr. Hamid Mir, to kindly take 3 minutes only while sitting on your own table, because anybody who comes to rostrum takes a lot of time. So I will request the speaker, Mr. Hamid Mir Sahab, kindly go ahead and talk about the situation in Pakistan and the world over on the subject of silencing the media, and the theme, I must remind you, is politics of persecution. Thank you, Hamid Mir Sahab. बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले जो सेशन था उसमें सनाउल्लाह बलोच साहब बात कर रहे थे रेंट ऑफ पार्टी, तो बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी की। आजकल पाकिस्तान में सब कुछ रेंट पे चलता है, और सिर्फ पार्टियां रेंट पे नहीं हैं, मीडिया हाउसेस भी रेंट पे चलते हैं, जर्नलिस्ट भी रेंट पे चलते हैं, लॉयर्स भी रेंट पे चलते हैं, सारे रेंट पे हैं। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ना बलोच साहब के
जेन्युइन डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और फिर आपने कहा कि लोग जो हैं वो पार्टियां बदल लेते हैं, उनकी असल पार्टी एक ही होती है। तो मैं सोच रहा था कि कितने सच्चे आदमी हैं आप, कि आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी काफ लीग में होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, फिर आपकी पार्टी में आ जाते हैं। और नहीं, ये भाई उन्होंने अच्छी बात की है, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं ना। और अभी ये जो बलूचिस्तान में नई हुकूमत बनी है, इसमें जो कैबिनेट आई है, आप देखें कि उस कैबिनेट में जो मिनिस्टर साहिबान हैं, यही मिनिस्टर जो है इससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, वो उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे। और इनसे जो हलफ लिया जिन गवर्नर साहब ने, वो पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, और उनका ताल्लुक पता है किस पार्टी से है? सनाउल्लाह बलोच की पार्टी से है। ठीक है, तो उन्होंने बड़ी सही निशानदेही की है। ये जो यहाँ से आवाज़ आई है ना, तो जो पार्टियां हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी सफ़ों से निकाल दें, साफ कर दें। ये इलेक्टेबल्स जो हैं ये आपको ख़राब कर रहे हैं, और मीडिया को चाहिए कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करें। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और सिर्फ जज साहिबान जो हैं वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इस पूरे रीजन में इस वक्त यही सूरत हाल है। इंडिया की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, श्रीलंका की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो। आइन पाकिस्तान को यहाँ पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूँगा। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज़ खुद नोटिस लिया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और JIT बनी, उसने लोगों से बयानात लिए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में होता था या जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा टीवी चैनल्स पे एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूँ कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊँगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा। तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशल कमीशन बनाए, और जिस किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा वो उस कमीशन के सामने आगे बताए। तो अब देखते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कोई ज़िम्मेदार जो है वो सामने आता या नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आगे तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनके मसाइल को भी समझें। मैं उनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए कि धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यहीं पे रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, 2 या 3 किया करें। तो आप भी पहले सिर्फ एक पार्टी नहीं, जिन पार्टियों के लीडरों ने यहाँ पे आके तकरीरें की हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से 2 या 3 उन लोगों को निकालें और फिर अगले साल आएँ। तो इसलिए हमने अब ये फैसला किया है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हम एक दूसरे
पे एतमाद नहीं करते। अरशद शरीफ का जो कत्ल का मुकदमा है उसको हम टेक अप करने में, उस पर कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा हमने अब फैसला किया है कि अब किसी और के पास नहीं जाना। अब हम जो आप लोग कहते हैं ना ये टीवी एंकर जो हैं ये बात क्यों नहीं करते, टीवी एंकर ने वो बात क्यों नहीं की, तो आपको तो पता है भाई हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, चैनल किसी और का है, हम तो उसमें बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो हमें ऑफर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा और जिस टीवी एंकर्स को कहीं से कोई कॉल आएगी या उसको डिक्टेशन देगी उसकी अपनी मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो हम लोग जो है वो पब्लिक में आके आपको बताया करेंगे। तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वतीउल्लाह जान साहब खड़े हो गए हैं, लिहाजा मैं अपनी सीट पे वापस जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि लोगों की आवाज़ को भी हमने साइलेंस नहीं करना, सिर्फ मीडिया का इशू नहीं है, लोगों का भी इशू है। तो आई रिक्वेस्ट ओवन बेनेट जॉन्स। Thank you very much indeed, and never an easy act to follow, so I'll do my best. And just to say, I'm only making a couple of very brief points, and I'm aware that ministers in Pakistan have a habit of saying when they are trying to control the press that they are only doing what happens in the West, and that the West has limits on free speech, and there's no reason why Pakistan should not have limits on free speech too. But there is, of course, a big difference. There's, in the UK and many Western countries, there are rules on press freedom, but they are established in law rather than being on the whims of ministers according to what's upset them on the day. So that's the first point. The second is that the press laws in the West are extremely restrictive, and there's no way that you would want to emulate them. We have controls in Britain on libel, which means that many stories I have exposing rich and corrupt people, powerful people, I am unable to publish because they would break the libel laws. There are stories about corruption in the English cricket team, stories about who killed Benazir Bhutto that have never got to air because of our extremely strict and unsatisfactory libel laws. We also face privacy laws that protect the rich and famous from perfectly legitimate journalistic inquiry into their activities. And we also have hate speech laws that are now becoming so restrictive that in Scotland, even if you simply offend someone, they take offence at what you say, that is enough for criminal proceedings to be started. It's quite an extraordinary law just passed a few months ago. I can't believe it will survive very long, but it is in place. It is legislation in Scotland. So for all these reasons, when ministers here tell you that they're only doing what happens in the West, I think you should be saying to them, well, the West at least has rule of law. And secondly, why would we want to copy the extremely restrictive laws that the West has? We can do better than that and have greater freedoms than Western journalists have. And I would just make one other point. Western governments, when it comes to it, if there is an important bilateral issue at stake, are always going to protect their bilateral issue with Pakistan more than press freedom. I've experienced that a few times, and there are pressures on these governments and they have their reasons, I understand it. But in the end, their interest in press freedom is limited. It is not the same as the journalists' interest in press freedom. So my advice to you really is you can't rely on your own government to protect your press freedoms. You can't rely on Western governments in the end to protect your press freedoms. The Western laws are no model you would want to follow. And the future for journalists here and everywhere else is to have collaboration online, communities of journalists around the world defending each other, collaborating and finding resources which are there to fund this kind of activity,
and to join as a global journalistic community fighting for press freedom and not relying on any government, here or in the West, to do it for them. And that's my 3 minutes. Thank you, Mr. Owen Bennett-Jones. I request Arfa Noor, who is a journalist from Dawn News, please. Shukriya ji. I'm speaking in such illustrious company कि पहला सवाल तो यही होता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. So फिर मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँगी how I look at journalism and the censorship as a sub-editor, because that's basically where I come from. I started my profession as a sub-editor, and what the sub-editor in me has seen over the years is that since television journalism has come in, और टेलीविज़न जर्नलिज्म का जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, मेरे ख़्याल में एक तरफ तो रियासत की सेंसरशिप है जो हमेशा होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, बट ये जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, इसने हमारी जर्नलिज्म का सत्यानाश कर दिया है. मोस्ट ऑफ द मनी फॉर दीज 40 और सो चैनल्स इज़ कमिंग फ्रॉम द स्टेट. हर चैनल जो है वो चल रहा है हुकूमत या रियासत के पैसों पे. जब वो रियासत के पैसों पे चलता है तो हम रीडर को या व्यूअर को तो अहमियत ही नहीं देते, उससे तो हम पैसे नहीं कमा रहे, तो हम क्यों क्वालिटी जर्नलिज्म करेंगे. मुझे ये लगता है, अखबार में जब हम थे हमें बताया जाता था कि सहाफ़त जो है वो लोगों की कहानियाँ होती हैं. इट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल. वी डोंट टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल बिकॉज वी वेक अप इन द मॉर्निंग, those of us who work in TV channels and those of us who watch TV channels, and we focus on the politicians. आज इन साहब ने ये कह दिया, फलाने साहब ने ये कह दिया. पहले वो दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम लाइव कट करते हैं. वो लाइव कट इसलिए करते हैं क्योंकि सस्ता है. दूसरा, हम लाइव कट इसलिए करते हैं क्योंकि आधा वक्त जो मिनिस्टर बैठा होता है, ही इज़ मेकिंग श्योर दैट द मनी इज़ गोइंग टू द TV channel. So let me tell you a secret. The next time you notice some random politician जिसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई चैनल मिस नहीं कर रहा, तो देखिएगा कि वो क्या नौकरी कर रहा है हुकूमत और किस हुकूमत के लिए कर रहा है. सो पहले तो हम दिन में वो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाते हैं, उसके बाद शाम को वही लोग आके हमारे टॉक शोज़ में बैठते हैं, फिर वो 2 और बातें करते हैं, फिर हम कहते हैं जावेद लतीफ़ ने ये कह दिया और शहरियार आफरीदी ने वो कह दिया. लोग तो कहीं नहीं है ना इस कहानी में. हम सेंसरशिप की बात करते हैं, हम कहते हैं जी वो नवाज़ शरीफ साहब का नाम नहीं लिया जा सकता, आजकल इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया जा सकता, तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती. बट लेट मी टेल यू कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कभी नहीं लिया जा सकता, किसको हम कभी नहीं डिस्कस करते, वो है PTM. पेरिफेरीज के ऊपर होती है सेंसरशिप. हम PTM पे रिपोर्टिंग नहीं करते, उसके ऊपर जो सेंसरशिप है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम अपने जो बलोच दोस्त हैं या सिटीजन्स हैं, हम उनकी बात सबसे कम करते हैं क्योंकि उधर है सेंसरशिप. बाकी जो है ना ये एलीट की लड़ाई, इसमें कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है, इसमें तब्दीली आती रहती है. बट द लार्जर पॉइंट हियर इज स्टिल कि रेजिस्टेंस अब हमारे मीडिया से बिल्कुल नहीं हो रही. हम सारा दिन ये लाइव कट्स और सियासतदानों की कहानियों में वक्त ज़ाया करते हैं. कोई आप याद करें कि पिछली दफ़े कोई सेंसरशिप अगर हुई हो तो किसी एज अ मीडिया इंडस्ट्री कहीं से कोई आवाज़ उठी हो, कोई रेजिस्टेंस आई हो because of that larger economic model. Journalists are thrown out of jobs, they are removed. कभी कोई गेस्ट भी आ सकता है कि नहीं, कोई आपको आवाज़ नहीं आती. हमारे अपने सहाफ़ी हैं वो हॉस्टेजेस के इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, हम उस पर भी आवाज़ नहीं उठा सकते. रेजिस्टेंस अगर कहीं रह गई है तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे रह गई है. ये भी हमारी नाकामी है, हमारी मेन स्ट्रीम प्रेस की नाकामी है. अब वहाँ आप देखें कि अभी हामिद मीर साहब भी जो थे वो बात करके गए अरशद शरीफ की. अरशद शरीफ when he was killed, he was out of a job, he was doing a vlog. When Matiullah Jan was picked up, you were also doing a vlog. When Asad Tur was arrested, he was also doing a vlog. नौकरी टीवी की और अखबार की हो, वहाँ कोई ख़तरा नहीं है. ख़तरा जो है ना इन लोन रेंजर्स से है.
और यहाँ अब आपको जो नई डिबेट सुनने को मिलती है वो ये होती है, ये सहाफ़ी नहीं है, ये तो वीलॉगर्स हैं, इनके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशनल एडिटोरियल चेक नहीं है। देखें, टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, हमारी रियासत ये बात नहीं समझ रही। The times will change. You cannot hold time back. You cannot hold technology back. These people will provide the voice that needs to be there. और ये जो गुफ्तगू हो रही है ना कि ये सहाफ़ी नहीं है, यहाँ एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है, ये जो गुफ्तगू करते हैं ये जर्नलिस्ट की नहीं है, these are just, how shall I put it, these are just ways to sort of sidestep the larger issue, which is that we are not doing our job as an industry, and there are just lone voices here and there that perhaps are making the authorities uncomfortable. Because if they're getting in trouble, they are making somebody uncomfortable. So अगर हम नहीं figure out करेंगे कि हमने main stream पे institutional तरीके से कैसे अच्छी reporting करनी है, तो फिर यही करेंगे। मगर इनको भी रोकने का तरीका ये नहीं है कि आप उनको criminalize कर दें उनके actions को, FIRs, arrests, PICA laws, this is not the way to go. We have to figure out a better way. Perhaps Owen Bennett-Jones has his own complaints of the way the Western press is handling things, but our complaint right now is that we would rather be attacked through, the defamation laws than being called criminals. Thank you very much, Arfanur. Now we have our special guest from our neighboring India, Siddharth, please. दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि हम साइलेंसिंग मीडिया की बात कर रहे हैं, तो 140 जो हमारे फ़िलिस्तीनी साथी पत्रकार सहाफ़ी जो इज़राइल के जेनोसाइडल वॉर के तहत उनका कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, उनको याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पत्रकार हैं उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, और दुनिया के लिए न सिर्फ फ़िलिस्तीन या अरब या उस खित्ते के लोगों की आंखें जो हैं, मतलब सारी दुनिया के लिए फ़िलिस्तीनी सहाफ़ी ही वो काम कर रहा है उस इलाके में वहाँ पे, और जिस तरह से उसको निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से उसको साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और भरपूर जो इसका जो है निंदा करनी चाहिए। रही बात हमारे खित्ते की, पाकिस्तान के बारे में आपने सुन लिया है, अब मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट में हिंदुस्तान के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे ख़तरनाक चुप्पी या साइलेंस वो है जो आप खुद इख्तियार करते हैं, बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी के डंडे चलने से, मतलब आप खुद ये तय कर लेते हैं कि मैं हुकूमत की तनकीद नहीं करूँगा, मीडिया के हवाले से जो मेरा काम होना चाहिए वो मैं इस काम को मैं ऑनेस्टली डिस्चार्ज नहीं करूँगा। और हिंदुस्तान में हकीकत ये है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अक्सरियत, खुद अपने फैसले से साइलेंस का रास्ता उसने इख्तियार किया है। पिछले साल एक सर्वे था, CSDS लोकनीति ने सहाफ़ियों से पूछा और 83% जर्नलिस्ट ने कहा कि हमारे जो मालिक हैं ये सब प्रो गवर्नमेंट वाले हैं। मुझे लगा कि ये आंकड़ा थोड़ा अंडर एस्टिमेट है, 83 नहीं, थोड़ा और होना चाहिए था ऊपर, क्योंकि आज जब हम टेलीविज़न खोलते हैं हिंदुस्तान में, यकीन मानिए हिंदी में या अंग्रेज़ी में कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं है जो सच्चाई को दिखाता है, जो हकीकत को दर्शाता है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरत हाल कुछ बेहतर होंगे, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान में, न्यूज़ मिनट, उन्होंने उनके सहाफ़ियों ने एक सर्वे किया, फरवरी 1 से लेके अप्रैल 12 तक
लगभग 5 हफ्तों के लिए उन्होंने जो 6 बड़े चैनल हैं हिंदुस्तान के, उनके कंटेंट का एनालिसिस किया कि प्राइम टाइम में किस किस्म की खबरें और किस किस्म की डिस्कशंस हो रही हैं। तो उस सर्वे के मुताबिक इन 5 हफ्तों में, और याद रखिए हिंदुस्तान में अभी चुनाव चल रहा है, इंतखाबात चल रहे हैं, 52% प्रोग्रामिंग जो है ये ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ था। 27% प्रोग्रामिंग खुल के नरेंद्र मोदी यानी कि वजीर आजम के प्रचार, मतलब उनके पक्ष में, उनके फेवर में था। 5.6% हिंदू मुस्लिम इश्यूज पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए जो फिरका परस्त इश्यूज हैं वो उसको आगे बढ़ाती है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन इश्यूज को आगे चलाने का काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ 1.4% प्रोग्रामिंग इन 6 चैनलों के प्राइम टाइम में 5 हफ्ते में, सिर्फ 1.4% कंटेंट आप उसको एंटी गवर्नमेंट कह सकते थे, प्रो ऑपोजिशन एंटी गवर्नमेंट, एंड ओनली 1.1% फोकस्ड ऑन इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, जो मतलब बुनियादी मसले हैं जिनके बारे में इंतखाबात के दौरान चर्चा होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो एक मैट्रिक है जिससे आप एक तरह से अपने पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई किस आधार पे आप वोट करेंगे। उसके बारे में कोई कवरेज नहीं, ना के बराबर कवरेज। तो ये सूरत हाल है मेजॉरिटी मीडिया की, उन पे दबाव, उनको साइलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये खुद साइलेंट हैं। और रहा जो दूसरा हिस्सा, जिसका हिस्सा द वायर, जिस इदारे से, जिस मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरा रिश्ता है, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल स्पेस में हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, मुश्किल हालात में कर रहे हैं, अलग अलग किस्म के दबाव हमको झेलने पड़ते हैं। कुछ हमारे साथी जेल भी गए हैं, कुछ के बहुत सारे साथियों पे केसेस लगे हैं, फाइनेंशियल केसेस लग जाते हैं, अलग अलग केसेस लग जाते हैं। लेकिन एक आखिरी मिनट में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले सेशन में पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर के हवाले से मैंने यहाँ के जो रिस्ट्रिक्टिव लॉज के बारे में उनका कुछ लॉजिक हमने सुना। मैं पाकिस्तान के लॉ से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में इंटरनेट फ्रीडम और प्रिवेसी और बहुत सारे ऐसे क्लेम्स के बेसिस पे, एंटी फेक न्यूज़ के नाम पे, बहुत सारे ऐसी चीज़ों के नाम पे सरकार अब डिजिटल न्यूज़ मीडिया को दबाने के काम में लगा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के तहत अब नेशनल सिक्योरिटी को क्लेम करके उसको एलिबाई बना के खबरों को उतारने की कोशिश की जा रही है। 2 साल पहले एक नया कानून बनाया गया जिससे सरकार ने खुद अपने आप को फेक न्यूज़ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक तरह से बना लिया, फैक्ट चेकिंग यूनिट। और अगर ये सरकारी फैक्ट चेकिंग यूनिट किसी भी खबर को फेक न्यूज़ अगर घोषित कर दे या डिक्लेयर कर दे तो उस न्यूज़ आइटम को डिलीट होना ही पड़ेगा। अब बताइए किस डेमोक्रेसी में कोई इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है कि सरकार खुद सरकार खुद तय करे कि भाई कौन सी खबरें रहनी चाहिए, कौन सी खबरें नहीं रहनी चाहिए। जाहिर है कि सरकार फिर अपने खिलाफ जो खबरें जा रही है सबको उड़वाएगी। तो लकीली इस प्रोविज़न पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में स्टे लग गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सरकार का जो तवज्जो है, फोकस है, वो डिजिटल मीडिया को किस तरह से सेंसर किया जाए, किस तरह से क्रश किया जाए। बहुत सारे, जैसे हमारे किसानों का आंदोलन अभी चला, तो किसान पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक आने की कोशिश कर रहे थे पीसफुल तरीके से। उनको दिल्ली के सरहद से दूर रोका गया, फिजिकल फोर्स लगा के। चलिए वो सरकार करती है, लेकिन जब किसानों ने अपने खुद के वीडियोस लेना शुरू किया, उसको सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, मतलब कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक अपनी जो मांगे हैं पहुंचाने की कोशिश की, तो सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी और रूल ऑफ लॉ को लेके ट्विटर पे दबाव डाला कि इन ट्वीट्स को आप उड़ाइए। तो हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स को हटाए गए, यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए। तो ये जो डिजिटल सेंसरशिप का जो अभी सिचुएशन बन रहा है,
और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी हुकूमत इसी लाइन में सोच रही होगी। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से बांग्लादेश, पूरे हमारे साउथ एशियन इलाके में जिस दिशा में जो हुकूमतें जा रही हैं, बांग्लादेश में भी बहुत ख़तरनाक कानून है। मुझे लगता है कि इसकी मुखालफत भी हमको करनी चाहिए और इसको जहन में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Siddhan. Now I request Pakistan's pride of journalism, Nasser Zaidi Sahab, and I think he is a legacy that we all professional journalists are really proud of. Mr. Nasser Zaidi, please come on the stage. और मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है ज़ैदी साहब, आप थोड़ा सा अगर आपके जो करंट एक्सपीरियंसेस हैं और जो कमिंग चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तानी मीडिया को फेस करने पड़ रहे हैं, उसके हवाले से अगर आप कुछ देर के लिए। टॉपिक इस किस्म का है कि इस पे बड़ी तफसील से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जब आप साइलेंसिंग मीडिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान में न मीडिया पहले आज़ाद था, न मीडिया आज आज़ाद है, बल्कि आज मीडिया जो है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड है और उस कंट्रोल पॉलिसी में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या हुकूमत का रोल इतना ज़्यादा नहीं है जितना डीप स्टेट का रोल है। मैं दो मिसालें देना चाहता हूँ आपके। आजकल मैंने कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू की हैं। मैं 1947 के और 48 के अखबारात देख रहा था। पहला सेंसरशिप इस मुल्क में मीडिया को साइलेंस करने के लिए जो जारी हुआ वो लियाकत अली ख़ान की हुकूमत में जारी हुआ, कायद आज़म की ज़िंदगी में जारी हुआ और वो एडवाइस जो है वो कायद आज़म की बीमारी की खबर को नश्र न करने की वजह से था। दूसरा जो सेंसर का आर्डर था वो कराची के 5 अखबारात को बंद करने का था और कम से कम 48 सहाफ़ियों को जो है वो निकाला गया। तो पाकिस्तान में मीडिया को गैग करने की जो पॉलिसी है वो हुकूमत की हमेशा से रही है। हमेशा से मीडिया जो है वो कंट्रोल होता रहा है। मीडिया ने वॉलंटियरली, मालकान ने अपनी आज़ादी को सब्जुगेट किया। तो आप देखिए कि 1947 से लेके 1958 तक का पीरियड जो है वो एडवाइजेस का पीरियड था। 1 लाख से ज़्यादा प्रेस एडवाइजेस जो है वो जारी हुई कि फ़लाँ ख़बर छपेगी, फ़लाँ ख़बर को किल करना है, फ़लाँ ख़बर को डिस्प्ले नहीं करना। इस तरह के ऑर्डर्स जो है वो रोज़ाना अखबारात के दफ्तरों में पहुंचाए जाते थे। उसी के मुताबिक जो है वो पॉलिसी, अखबार के मालकान जो है वो पॉलिसी मुरतब करते थे और ऐड क्योंकि हुकूमत देती थी, हुकूमत जो अखबारात टो नहीं करते थे उनकी पॉलिसी को, अखबारात के इश्तिहारात जो है वो बंद कर दिए जाते थे। 58 में जब मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ में सबसे पहले जो है वो जो पहला मार्शल लॉ ऑर्डर है वो एनपीटी पे कब्जे का था, पीपीएल पे कब्जे का था। पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड जो है, पाकिस्तान टाइम और लैलो नहार, इमरोज़ पे कब्जा किया गया। तो और 1951 में एक और सिविल एंड मिलिट्री गज़ट जो है बहुत बड़ा अखबार था। उस सिविल एंड मिलिट्री गज़ट को जो है वो
सिर्फ एक खबर की बुनियाद पे 100 साल पुराने अखबार को एक ऑर्डर के तहत बंद कर दिया गया और तमाम अखबारात पे बशमूल पाकिस्तान टाइम फ्रंट पेज पे एडिटोरियल छापे कि सिविल एंड मिलिट्री गजट को जो है बंद कर देना चाहिए। हालांकि उस वक्त के एडिटर ने न सिर्फ उस खबर पे माजरत छापी बल्कि उस खबर के बारे में क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त की सिविल हुकूमत ने जो है वो अखबार को 100 साल पुराने अखबार को जो है वो बंद कर दिया। मार्शल लॉज में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत जो है वो सख्त तरीन सेंसरशिप जो है वो अखबारात पे लगाई गई। इसी तरह वस्ट पीरियड जो है वो ज़ियाउल हक का था, जिसमें न सिर्फ सहाफ़ियों की परसिक्यूशन हुई बल्कि अखबारात पे 11 साल तक सेंसरशिप नाफिज रहा और उस सेंसरशिप में हर पेज को जो है इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास ले जाया जाता था और वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर ग्रेड 17 का वो एक एक पेज किए एक हर खबर को हर लाइन को पढ़ता था और फौरन ही क्रॉस कर देता था कि ये खबर जाएगी ये खबर नहीं जाएगी। तो 10 साल ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो प्रेस जो है वो गैग रहा। फिर मुख्तलिफ हुकूमतें आई, लेकिन सिविल हुकूमतों ने भी जो है वो प्रेस पर जो है वो पाबंदियां लगाई। मुशर्रफ के ज़माने में हाइब्रिड रिजीम का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुशर्रफ के दौर में जो है हाइब्रिड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ कि उससे पहले सेंसरशिप जो है वो इनडायरेक्ट होती थी कि गवर्नमेंट के थ्रू जो है गवर्नमेंट की एडवाइस के थ्रू जो है प्रेस को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन मुशर्रफ के दौर में एजेंसियों का रोल जो है वो सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा कि न्यूज़ में कामरान खान की एक स्टोरी थी, उस स्टोरी पे उनको बुलाया गया, एडिटर को बुलाया गया और कहा गया कि आप इस खबर के बारे में जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो शाया करें। ज़ियाउद्दीन साहब एडिटर थे, उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये खबर जो है ये कराची से जनरेट हुई है, एडिट हुई है और मैं इस खबर को ऑन करता हूँ। उसका नतीजा ये हुआ कि एक हफ्ते के अंदर अखबारात के इश्तिहारात बंद किए गए, ज़ियाउद्दीन साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा अखबार से और मालकान ने जो है वो अपनी आज़ादी जो है सिर्फ इश्तिहार के लिए जो है वो गिरवी रखी और हुकूमत की पॉलिसीज़ जो है वो टो करनी शुरू की। फिर शाहीन सहबाई जब एडिटर बने न्यूज़ के, उस वक्त भी एक क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ। कुछ एडिटोरियल जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखे गए और रेफरेंडम के बारे में, जो मुशर्रफ का रेफरेंडम था, उसमें जो पब्लिक मीटिंग्स होती थी उस पे एक एडिटोरियल लिखा गया और उसमें 3rd ग्रेड पब्लिक मीटिंग उसमें लिखा गया। उस पर अखबार को वार्निंग दी गई, शाहीन सहबाई को मुल्क छोड़ना पड़ा और जिस
असिस्टेंट एडिटर ने एडिटोरियल लिखा था, उसको घर जाना पड़ा। तो ये जो प्रोसेस है परसिक्यूशन का, साइलेंस करने का, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी से जारी है और उसमें अब शिद्दत जो है वो ये है कि कंट्रोल करने की अथॉरिटी जो है वो हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत के पीछे जो बड़ी हुकूमत है वो इस मुल्क के प्रेस को जो है वो कंट्रोल कर रही है। अगर प्रेस जो है वो आज़ाद नहीं होगा, प्रेस की आज़ादी को आप सल्ब करेंगे, तो फिर आप किस तरह से रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को जो है वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिस मुल्क में प्रेस आज़ाद ना हो। तो ये आज़ादी को कंट्रोल करने का सिस्टम जो है पाकिस्तान में 47 से लेके अब तक है और होप ये होनी चाहिए कि यहाँ हम सब मौजूद हैं और हम ये समझते हैं कि हमें प्रेस की आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद और अपना अलम जो है बुलंद रखना चाहिए। हम मुतालबा करते रहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस लोगों का बुनियादी हक है। लोग जानना चाहते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि मुल्क में फौजी हुक्मरान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से हमें डिक्टेट कर रहे हैं। चाहते हैं लोग कि ट्राइबल एरिया के अंदर क्या हो रहा है, चाहते हैं लोग कि बलूचिस्तान में क्यों सहाफ़ियों को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है लोग जानना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में प्रेस आज़ाद हो, लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। ये तमाम चीज़ें मशरूत हैं कि हम मुत्तहिद होकर और मुनज़्ज़म अंदाज में आवाज़ बुलंद करते रहें। यकीनन हमें होप है और इस होप की वजह से हम जो है मैदान अमल में हैं कि प्रेस जो है एक ना एक दिन जंजीरों से आज़ाद होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे पास, सहाफ़ियों के पास सिर्फ खोने के लिए जंजीरें हैं जो हमारे पैरों में, हमारे हाथों में है, हमारे पैरों में है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है, पाने के लिए आज़ादी है, पाने के लिए जमहूरियत है, पाने के लिए प्रेस फ्रीडम है। तो हम अपनी जंजीरों के साथ जद्दोजहद करते रहेंगे कि इस मुल्क में प्रेस को आज़ाद होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की आज़ादी दी जानी चाहिए लोगों को, और इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो होनी चाहिए। ये बुनियादी हक है और इस बुनियादी हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। अब हमने प्रेस की साइलेंसिंग के वाक़यात तो सुन लिए, अब काफ़ी देर तक हमने ऑडियंस को भी और आवाम को भी साइलेंस रखा हुआ था। मेरे ख़्याल में अब हमें लोगों की आवाज़ भी सुन लेनी चाहिए, कुछ सवाल जवाब का सेशन भी लेंगे, मगर 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा मुझे 1 मिनट के लिए सुन लें। मैं क्विकली इस डिबेट को थोड़ा सा जो स्पीकर्स ने बात की है उसके ऊपर एक सलूशन मैं क्विकली देना चाह रहा हूँ। इट्स अ 3 पॉइंट सलूशन है। सबसे पहले तो हम वकला का ये फंक्शन है, सहाफ़ियों की आज़ादी की बात हो रही है, तो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी जो एक पाकिस्तान बार कौंसिल ने बनाई हुई थी,
मेरी ये रिक्वेस्ट है, पहले भी मैंने आबिद साकिब साहब के साथ मिल के ये कमेटी जब हमने बनाई थी तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। तो एक जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक बार फिर उसको रिवाइव करना चाहिए। और इसने जितने भी अदालतों में केसेस थे मीडिया के, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट किया था, और उसी कमेटी के नतीजे में हमें एडवोकेट ईमान मज़ारी और दूसरे सीनियर लॉयर्स जो हैं हमारी रेस्क्यू को आए थे। सेकेंडली, अगर लॉज के ज़रिए पुलिसिंग करनी है मीडिया की तो उसकी बजाय पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर बिल्ड करें आप मीडिया के ऊपर। एक एथिकल प्रेशर अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एनुअल क्रेडिबिलिटी इंडेक्स, एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाए जिसमें जितने टीवी चैनल्स हैं या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी कितनी खबरें सही हैं, कितनी गलत हैं हर साल की, ये एक रिपोर्ट शाया की जाए। ये रिपोर्ट जो है पेमरा जो है सीनियर जर्नलिस्टों की मदद से ये एनुअल रिपोर्ट शाया कर सकता है टू रेगुलेट मीडिया। मगर अगर पुलिसिंग मकसद है तो ऑब्वियसली फिर इतनी मेहनत करने की शायद किसी को सकत नहीं होगी। एंड क्विकली, जो व्लॉगर्स हैं, जो जर्नलिस्ट नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर से लोग हैं, उनके लिए पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग लीगल रजीम है, हमारी लाइबल की डेफेमेशन लॉज हैं, उसको एक्टिवेट किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं तो हमें शैलो गवर्नमेंट्स की बात भी आज हमें सुनने को मिली है। तो ये शैलो गवर्नमेंट्स जो हैं इनको भी अपने गिरबान में थोड़ा झांकना होगा। आखिर में मैं ये सब कुछ इसलिए कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी सहाफ़ी को खामोश कराने का कि उसको मॉडरेटर बना जाएं किसी भी डिस्कशन में, वो अपनी बात तो कर नहीं पाता। तो क्विकली जी, अब हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है। जी आप प्लीज़, जी आप फर्स्ट अपना तारुफ कराएं प्लीज़, और माइक अगर कोई यहाँ पे हैं जो माइक दे सकते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे। जी माइक्रोफोन है प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जी आप क्वेश्चंस, जी प्लीज़। My name is Naveed Nawaz, and my question is for Owen Bennett Jones. Owen, as you know that it is quite usual thing that generals and intelligence agencies give dictation to the courts, to the politicians, and to the media. My question to you is that has it ever happened in your country? And if it did, what was the reaction of the respondents? Good question. Or if it did not happen in the past, in case if it happens in the future, what do you predict? What will be the reaction of the media? Thank you very much. And the courts and the political leaders? Thank you. Your question is there. Owen? How would UK journalists react to repression from the state, effectively? I believe we have it in a more subtle form. In Pakistan, it may be quite brutal. It is brutal. Journalists die here. In the UK, government employs literally thousands of people to control what we say. So do commercial companies, in order to get what they want into the newspapers, onto television and into radio. It is the same process. It is government control of what we write. It's just done with less violence. And I have to say, the press is compliant. And I think I stand in awe of Pakistani journalists who resist in the face of violence with more courage and principled determination than many of us manage in the West when we face people trying to control us. Thank you, Oman. I'm sure you at जी। least will be able to make similar speeches in UK. Okay, जी, जी। next question please. जी मेरा नाम फारूक तारिक है और मेरा सवाल है सिद्धार्थ साहब से। सिद्धार्थ, आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान में, और सवाल है हमारा जो एक साथी इंडिया की जेल में बंद हैं, न्यूज़ क्लिक के प्रबीर साहब, उनकी सेहत के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ आप बता सकेंगे कि उनके केस की मौजूदा सूरत क्या है, और प्रबीर के बारे में जो वहाँ पे न्यूज़ क्लिक के एडिटर थे। Siddharth, you want to come here? जनाब, सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रबीर पुरकायस्त
उनकी उनकी उम्र जो है तकरीबन 75 साल की है और पिछले अब 6 महीने से ये एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत उनको बंद किया गया है। प्रबीर जो हैं ये फाउंडिंग एडिटर हैं न्यूज़ क्लिक, जो एक डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट है, इंडिपेंडेंट है, प्रो पीपल है, और इस वेबसाइट ने जो हिंदुस्तान में जो किसानों का जो आंदोलन चला और भी जो स्ट्रगल्स हैं लोगों के, उनके बारे में रिपोर्टिंग की है बड़े इंडिपेंडेंट और फ्री तरीके से। तो इन पे इल्ज़ाम जो है सरकार ने लगाया है कि आपने चीन से पैसा लिया है, और ये एकदम बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है, क्योंकि सारा जो पैसा इनको मिला है वो बैंकिंग चैनल से मिला है और उसकी आइडेंटिटी सरकार को अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये केस फैब्रिकेट किया गया है और जिस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है इस कानून के तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से जो है इसको उन पे ये चार्जेस लगाए गए हैं, क्योंकि अगर अब मामूली कानून के तहत उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती तो शायद अब तक उनको ज़मानत मिल जाती। तो मकसद यही है कि एक आदमी को जेल में रखो और हज़ारों की तादाद में लोगों को डराओ धमकाओ। थैंक यू सिद्धार्थ जी। मेरा सवाल जो नासिर जैदी साहब से है जी। जैदी साहब, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के हवाले से जदोजहद की तारीख तो बहुत पुरानी और आपने रोशनी भी डाली है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि मीडिया जो है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल, बल्कि कंट्रोल से भी अगली सूरत चल रही है, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ ना तो ट्विटर चल रहा है, ना फेसबुक और बाकी जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं वो प्रॉपरली चल रही हैं, और जो रेगुलर मीडिया है उसको एडवाइस आती है और वो उस एडवाइस को फॉलो करता है। तो क्या ऐसी सूरत हो कि पाकिस्तान की जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और इवन जो हमारे एक पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के साथ भी एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का सारे मामलात हैं, कैसे ये मामला आगे बढ़े, क्योंकि इस वक्त तो वाकई आवाज़ जो है वो नहीं उठ रही। थैंक यू। और कोई बात नहीं हो रही जी। नासिर जैदी साहब, देखिए, बात ये है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर रही है। बेशुमार मौक़े ऐसे आए हैं कि इलेक्शन के दौरान भी मीडिया को बंद किया गया। अब बात ये है कि ये तमाम एक्शंस तो हो रहे हैं, इन एक्शंस के ख़िलाफ़ हमारे पास कौन सा रास्ता है रोकने का। हम पेटिशन में गए, जब एक्स पर पाबंदी लगी हाई कोर्ट में, पहले तो हुकूमत जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि एक्स पर पाबंदी हमने लगाई है। फिर उन्होंने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट पे हमने पाबंदी लगाई है, और साथ ही ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि साथ ही जिन पेटिशनर्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के लिए पेटिशन हाई कोर्ट में दाखिल की थी, उनको डीप स्टेट के लोगों ने फ़ोन किए और अपने ऑफिस में बुलाने की बात की और उनको प्रेशराइज करने की बात की कि आप ये पिटीशन वापस ले लें, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हम किस तरह से इसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ बुलंद करें। लीगल पॉइंट पे भी हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, पीएफयूजे के लेवल पे भी हम जो है इस मसले पे एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाने का सोच रहे हैं कि हमें इसके लिए जो है वो मुनज़्ज़म होकर पूरे पाकिस्तान में लोगों को अवेयर करना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। एक ही रास्ता है कि हम सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, हमें एहतजाज करते रहना चाहिए।
I'm Khalid Ranja, एडवोकेट खालिद रांझा। ये सेशन आसमा जहांगीर साहबा के हवाले से है। तो आसमा जहांगीर इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर करेज टू फाइट, हर करेज टू नेम नेम्स। बट हमारे जर्नलिस्टिक कम्युनिटी हो, हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारी सिविल सोसाइटी हो, मुझे लगता है कि आसमा जहांगीर की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए हम उतने करेजियस नहीं हैं जितनी आसमा जहांगीर थी। हम ये कॉन्फ्रेंस तो हर साल करते हैं, लेकिन वो जो उनके करेज की ट्रेट थी उनको हमने अभी तक अपनाया नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मॉडरेटर हैं इसलिए मैं आपको माफ़ी नहीं दूंगा, आप कुछ बात कीजिएगा कि हमारे सहाफ़ियों को उठाया जाता है, तो जो भी उठाया जाता है वो जब वो रिलीज़ होता है तो कहता है मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर पे ले गए थे। तो वाई डोंट वी हैव द करेज टू नेम नेम्स? आप में ये करेज क्यों नहीं पैदा हुआ कि आप बताते कि आपके एबडक्टर्स कौन थे, आपके टॉर्मेंटर्स कौन थे, किन लोगों ने आपको उठाया, कहाँ रखा गया? जो भी उठाया जाता है वो कहता है मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में ले जाया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। तो हमें कौन से प्रेशर्स हैं और कब हम इस पोजीशन में होंगे कि वी हैव टू करेज टू नेम द नेम्स? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये ज़रूर शुमाली इलाका जात की बात भी हमारे एक साथी ने की थी, मगर मैंने जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, इमीडिएटली व्हेन आई वाज रिकवर्ड और वापस आया तो मैंने एक पूरा वीडियो लॉग भी किया था उसमें, और एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैंने उसमें मुकम्मल बात भी कर दी थी। और उसके बाद मैंने एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी पूरा रिकॉर्ड कराया, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये सिर्फ उस दिन के वाक़े की बात नहीं है, पिछले 25-26 साल से जो मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सहाफ़त कर रहा हूँ, उस दौरान जितने भी मेरे साथ वाक़यात हुए हैं, उन वाक़यात के अंदर जहाँ जहाँ ISI का जिक्र आया है वहाँ पे बाकायदा उसको मेंशन भी किया, और ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने एक समाअत में बाकायदा जनरल बाजवा ने जो एक इंटरव्यू दिया था किसी सहाफ़ी को, शायद मेतला साहब को, उसका भी जिक्र हुआ, और उन्होंने जो बातें जनरल फैज़ के हवाले से की थी उनका भी जिक्र हुआ है। तो नाम तो आ रहे हैं और सबको पता भी है। अब देखना यह है कि हमारी अदलिया जो है वो किस हद तक मामलात को आगे ले जा सकती है। एक जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि विक्टिम ब्लेमिंग को छोड़ के जो परपेट्रेटर हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और उसमें मैंने जैसे पहले सजेस्ट किया कि जो कोर्ट्स हैं, जो वकला हैं, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, अगर वो जर्नलिस्ट के साथ मिल के एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा रिवाइव करती है जैसा कि जर्नलिस्ट डिफेंस काउंसिल था, जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी, तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें फिर एग्जैक्टली नाम तक भी जाएंगी। और आपने देखा हामिद मीर साहब पे जो हमला हुआ था उसमें नाम आया था ना, उसमें सारी दुनिया के सामने नाम चला, मगर उस नाम के चलने के बाद क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठ गए, जिसमें एक जस्टिस अनवर ज़ईद जमाली थे उस बेंच के हेड, मैं उसमें बतौर विटनेस पेश हुआ, सलीम शहजाद के केस में बतौर विटनेस पेश हुआ। वहाँ पे मैंने क्या कहा, जो सलीम शहजाद की रिपोर्ट है वो भी आप देख लें जो सामने आई, और जो हामिद मीर की जो रिपोर्ट है मुबैना तौर पे वो जो लीक हुई उसमें भी देख लें, मेरा बयान बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये बात नहीं है कि नाम कोई नहीं लेता, नाम सब लेते हैं, लेकिन फिर जो हमारे जजेस हजरात हैं मामला वो आगे फिर उससे नहीं चलता। तो बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। और नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स? My name is Abdul Razak, and I'd like to ask a question that when genuine journalism takes place, one of the biggest issues that it faces is perhaps what is described as fake news. And even in the Western countries, the term fake news is being used in order to control or perhaps, diminish the genuine journalism that is taking place. So how do you as a journalist reconcile between the need to control such fake news and how the actions taken might encroach on genuine news that is being presented in the country? So thank you very Thank much. you. I mean, I think the point I'm trying to make is that I agree with you that there are attempts to control Western journalists. I maybe should have made it clearer. I mean, the press officers, the public relations companies, the spin doctors, the communication strategists. It's a whole industry of people who are trying to ensure that what they want gets into the newspapers and television, rather than what an independent journalist may want
to get in. And it's extremely difficult to deal with because 24-hour news and newspaper deadlines, short-staffed, short of money, they rely on press releases, on steers from government, from officials, from companies in order to get content to fill their publications. So it's not easy to resist the temptation to take the information that is being spoon-fed to us and to repeat it. There is a solution. Just as I urged you to look at digital communities around the world, bringing journalists together with maybe foundation funding in order to be genuinely independent. And if you made applications from Pakistan, by the way, to these foundations, you would be very well received, and I've no doubt you would get funds to do this. But similarly, when it comes to independent journalistic output, the solution is there on YouTube, on Substack, on Twitter, on TikTok. Those are the platforms where you can say what you want to say, unmediated by editors, by corporate machines that are, desperately trying to turn out content. I mean, I understand where they're coming from and I can see their difficulties. But as independent journalists, you can now find platforms in order to promote yourself and even get paid on those platforms. So I think that is the future. It's being your own journalist and your own editor. Thank you very much, Owen. So I think we come to conclusion of this session. I thank once again Asma Jahangir Conference Management. Mateen, I want to ask I can see some hands, but is this the last question? I'm sure. थैंक यू मतीन, आपने जो है वो क्वेश्चन का करने का मौका दिया। जुल्करनैन असगर, डिसेबिलिटी राइट्स पे काम करता हूँ और HRCP का मेंबर हूँ। आई हैव वन क्वेश्चन हामिद मीर साहब आपसे और जो सिद्धार्थ हैं उनसे भी चले गए, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए, आप बहुत दफ़ा जो डिजिटल, स्पेशली हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब कोई अवामी मसला होता है उस वक्त वो अवामी मसले को छोड़ के वो फिर नया इशू क्रिएट कर देते हैं, उस पर बात करने लग पड़ते हैं और प्रो पीपल जो है वो रिपोर्टिंग उमूमन जो है वो इग्नोर हो रही होती है। और उसको हम एक क्वेश्चन का पार्ट ये है क्योंकि हम देखते हैं कि वो आवाम की आवाज़ वहाँ नहीं वो आती। दूसरा पार्ट ये है कि जब ट्विटर बैन है, जो सिटीज़न जर्नलिज्म है, अगर आप वो देखें तो वो कितना कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो क्योंकि रियल मासेस की आवाज़ तो वहाँ से जा रही होती है। थैंक यू। हामिद मीर साहब तो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो जा चुके हैं, बट आई एम श्योर आरफा अगर आप कुछ कहना चाहती हैं इस हवाले से। जी देखिए, यही हम आई थिंक हमारी बदकिस्मती यही रही है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे इस वक्त के जो इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए हैं, ना होने के बराबर है। उधर तो जो आम लोग हैं ना उनकी बात होती है, ना कोई गुंजाइश बची है। तो उम्मीद तो थोड़ी सी यही थी यहाँ जब मैं आई थी कि शायद हम भी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सामने आएंगे, सिटीज़न जर्नलिज़म जो हमारे वीलॉगर्स हैं कर रहे हैं। पर सिद्धार्थ साहब की बात सुन के मेरी उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ख़त्ते में अब इधर भी सब इसके ऊपर भी सेंसरशिप हो रही है। बट आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। को पानी का रास्ता कैसे कितना रोकेगी रियासत? जो भी अब गुंजाइश है या स्पेस है हमारे पास वो सोशल मीडिया पे ही है, उस पे वो कदगने ज़रूर लगाएंगे, कोशिश भी करते रहेंगे। पर जैसे नासिर जैदी साहब की यहाँ प्रेजेंस ही हमें बताती है कि ये जंग तो हम अब 75 साल से लड़ रहे हैं, हम भी यही हैं और वो भी यही हैं। Thank you very much, Arifa. I once again thank all the honorable guest speakers in this session, and I thank the audience as well. And we only wish Asma Jahangir Conference Management to continue this venture. And this is the only place and only opportunity once a year in Lahore that people like us are able to say things which we may not be able to say throughout the year. So once again, a big thanks